Good morning, students. Hope you are doing your work regularly. We are starting now question 8th of exercise 3.3. The following figures, guns and runs are parallelograms. So in first A part, they have given the figure GUNS. And we have to find this X and Y, means unknown variables. Now, you are seeing what they have given. The sides are given, so we will use the property of sides of parallelogram. पैरेललोग्राम की साइड्स एंगल, अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं और हमने किया था साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ. जैसे रेक्टेंगल की होती है ना, ऐसे अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो सी इट, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. यू विल राइट as opposite sides are equal, therefore 3x is equal to 18. Now x equals to 18 by 3. 3 is in multiplication, so it will come in division. 3 ones are 3, 3 6 are 18, and they have given length r in centimeter. Therefore x is equal to 6 centimeter. Got it? Now same way, as opposite sides are equal, so these sides are also equal. Now 3y minus 1 equals to 26, and you will see 3y is equal to 1 क्या है, minus. When we will shift it here, it will become plus, so you will get 27. 3y is equal to 27. So y and this 3 will come in division. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर शिफ्ट होगा तो डिवाइड. 3 ones are 3, 3 9s are 27. So y is equal to 9 centimeter, and you will write answer x 6 centimeter and y 9 centimeter. Is it clear? Now same way, in B part they have given you the parallelogram whose name is runs, RUNS. Have they given anything about sides? No. Now this time they have given something about diagonals. So we will use the property of diagonals of parallelogram. You know diagonals of, कैसी होती हैं पैरेललोग्राम की डायगोनल्स? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इज इट क्लियर? जो चीज दे रखी हो वो वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है. एंगल्स के बारे में है तो हम एंगल्स के बारे में यूज करेंगे. साइड्स था तो साइड्स. अब डायगोनल्स है बाइसेक्ट. बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में कट करती हैं. अब 16 इज इक्वल टू x प्लस 7, 20 इज इक्वल टू y प्लस 7. दो इक्वल, बाई मतलब टू इक्वल पार्ट्स में सेक्ट करना, इंटरसेक्ट करना. अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं तो इसे छोड़ के पहले हम ये काउंट करेंगे. 20 इज इक्वल टू y प्लस 7. जो अननोन वेरिएबल होता है उसे पड़े रहने दो. यू विल शिफ्ट दिस 7 टू अदर साइड. प्लस में है तो उधर जाके माइनस. यू विल गेट y इज इक्वल टू 13. That means y equal to 13 centimeter. Now same way these parts are also equal, so you get, चाहे इधर लिख लो, x plus y equal to 16. अभी हमने y निकाला है. I am putting the value of y 13, that is 16. Now take this, shift this 13 to that side, right hand side. You will get 16 minus 13, that is 3 centimeter. So what you have got? X is equal to 3 centimeter and y is equal to 13 centimeter. In this way you will calculate your unknown variables. Is it clear? डायगोनल्स का था तो डायगोनल्स की प्रॉपर्टी. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? साइड्स इक्वल होती हैं, एंगल अपोजिट इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट टू इक्वल पार्ट्स में
डिवाइड करता है। तो जो भी आपका जैसा अननोन दिया हुआ होता है तो वो आप प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी यू हैव टू यूज। इज इट क्लियर? नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 9th. See here, if you see just the lined figure, you will see a trapezium, but see it carefully. They have given two parallelograms are there, RISK. ये एक parallelogram हुआ, और to make it more clear I am using a colored pencil. See this, I am talking of this part. Is it clear? This part, red part, ये क्या है? इसको अगर कंसिडर करो, RISK एक पैरेललोग्राम है। इस पैरेललोग्राम में एंगल दिया है, नेचुरली यू विल गेट टू नो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 120 हुआ। या ऐसे देखो, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये जो एंगल ये है, इसको मैं 1 नेम दे रही हूँ। इज इट क्लियर? तो एंगल 1 प्लस एंगल K इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? एडजेसेंट जुड़े हुए एंगल्स जो साथ साथ हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो एंगल हम वैल्यू पुट करते हैं। एंगल K दिया है 120 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 निकालना है, शिफ्ट दिस 180 टूवर्ड्स योर राइट, 120 टूवर्ड्स योर राइट हैंड साइड, सो यू विल गेट 60 डिग्री। ये एंगल आ गया 60 डिग्री। नाउ सेम वे, अब आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, पैरेललोग्राम को, इस पार्ट को, ये इसको मैं ब्लू कलर से कर रही हूं, ये वाला पार्ट, दिस वर्ड, इट्स नेम इज क्लू, CLUE। ये भी एक पैरेललोग्राम है। अब एंगल L जो है वो क्या दिया हुआ है? 70 डिग्री। एंगल L यू नो इज इक्वल टू एंगल E। वाई? बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर opposite angles of parallelogram are equal. Is it clear? तो एंगल E जो है वो कितना हो गया? 70 डिग्री। Is it clear? Now see this, a small this, I have marked angle E or angle 2, you may name it. So I will write angle 2E. 2 is equal to E is equal to 70 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो, ये जो छोटा सा एक क्या आ गया बीच में? ट्राइंगल। इसके हमें एंगल 1 भी पता है, अभी हमने निकाला 60 डिग्री, और एंगल 2 भी पता है, वो है 70 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी 7th की याद है? सभी एंगल्स का सम ट्राइंगल का क्या होता है? व्हाट इज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल? 180 डिग्री। नाउ in triangle I am naming, इसको बीच में हम O नेम दे दें तो ट्राइंगल हो गया EOS। इन ट्राइंगल EOS, are you seeing the triangle also? EOS, एंगल E प्लस एंगल O प्लस एंगल S is equal to 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? यू ऑलवेज यू हैव टू राइट प्रॉपर्टी ऑल्सो। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। इज इट क्लियर? तो एंगल E कितना था? हमें अभी फाइंड आउट किया है 70 डिग्री। एंगल O हमारा पता नहीं, इसको हम X भी दे सकते हैं, नेम उन्होंने दिया है। एंगल S 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। 70 प्लस 60 130 डिग्री। एंगल O को उन्होंने X नेम दिया हुआ है, 180 डिग्री। लीव X हेयर, शिफ्ट दिस 130 to that side, right hand side, and
प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यू विल गेट 50 डिग्री. सो योर एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री. तो आज आपने पैरेललोग्राम की 3 प्रॉपर्टीज जो हैं आपने यूज की हैं. व्हाट? एक तो साइड्स की, अपोजिट साइड्स आर इक्वल. देन देयर वाज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू डायगोनल्स, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. और फिर हमने थर्ड एंगल फाइंड किया जिसमें हमने एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज की. दो कौन सी? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री 180 डिग्री वाला, और अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज करके वी हैव फाइंड आउट. इज इट क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.